Om Shri Sai Nathaya Namaha. 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 First, we'll clear the English version which was left yesterday, and then we'll continue. The illusion of I-ness and myness should be completely destroyed. One should always be prideless. The sufferings are fruit of our last birth's action and should be willingly accepted. There is no question of escaping from them. Do not expect anything in life. Baba used to advise through the nectar of his speech, who has never left Shirdi till his death. Baba used to express himself in crowd or in a jungle. Also, Baba proved the other sayings of Upanishad by predicting what would happen in future before beforehand and provide himself to be almighty, who does not move and said in Upanishad, and he is omnipresent and also omniscient. He has visited someone, someone on Machindragarh and to some in cities like Kolhapur, Solapur, Rameshwaram, etc. He used to express himself in different form as desired by devotees. Some could see him in dreams, some is awakened, some in awakened stage in form of sound, light, with different clothes, etc. To some, he could visit in his own form. Devotees have many types of experiences. How much can I describe? Baba was at Shirdi in body form, but he used to travel in micro form to anywhere in any part of the world as per the need. As said in Upanishad, Baba was omnipresent. He was to be seen somewhere else other than place of his physical presence, for which Baba did not have to leave Shirdi. Just think of that maid servant, a commonest among common. Nobody could remember her, but she just sang a song of Orange Sari, narrating Orange Sari, and had explained the secret meaning of the Upanishad unknowingly. Everything looks like a surprise. Dasguru asked Baba to clarify his doubt. It was clarified by a small maid servant at Kaka Sahib Dikshit house. Can anyone believe that it is a coincidence? This is the creation of illusion by Baba. It is not. If it is not so, then how Baba would know that the maid servant of Kaka Sahib's home would explain the meaning of secret stanza through her song? But it happened, and Dasguru was wonderstruck of the situation. His doubt was clarified, and he got the meaning of some stanzas from Ishavasya Upanishad. His troubles were finished, and there was no doubt left. One may think why Baba had done so many activities. He himself could have clarified the doubts of Das Guru. Could not Baba do it while sitting in Shirdi?
but its importance could not have been emphasized. Baba had shown that God is present in that maid servant also. The subject of Upanishad is to explain absolute truth, self-realization. Discussions on the subject help get into spiritual path. They provide access in different method to enjoy the essence nectar of Upanishad. The There are different lives, but soul is same in them. Soul has no activities nor action or have any attachment to the for results of the action. Since it has no attachment for results of actions, there are no good deeds or bad deeds for him. The rulers and the rules of the actions are not binding on him. As long as duality of caste remains, the binding of actions are necessary. The soul is one for all. Soul has no body. It has different form. In whole universe of lives, in whole universe of lives and stationary atoms, there is nobody except me. All pervading principle in me is me, the soul, the God. Knowing this means understanding absolute truth. To get absorbed in absolute truth is the aim of sentient soul. This theory has been propounded in all Vedas religious texts. The sentient soul, which is separated from the soul aspires to merge with absolute truth. God is present in all lives in equal proportion. Till one realizes this, the omnipresent God cannot be enlightened anybody. By following the action as directed by God's rules, one can purify the mind. After purifying the mind, the knowledge of omnipresent God is achieved. The supreme truth will express itself after coming out of illusion of sorrow, happiness, and such other emotions. The God is omniscient, omnipresent, who does not act nor has any binding of work. He is formless, the greatest, without any form. He is different from body. He stays inside the body. He is inside the body, but not a body. If we think our body is our soul, it is due to avidya or ignorance. The God has occupied the universe of name and form. He is present in living beings and materialistic world. He is entirely different. The God who is formless, attributeless, expresses itself due to illusion. He looks like a bounded sentiment. The person working without any expectation has no binding of worldly affairs, which is present everywhere but not seen, what is beyond grasping but true, what has no birth or death, what is infinite, what is present in world of five principles is Ishvara. It is difficult to discriminate and understand because illusion covers our discriminating capacity. So do not expect money, diamond, pearls, etc. because these are all comes into materialistic world. If one cannot do this, think that we are only responsible for actions. We have a right to work and keep working throughout life. This should be based on discriminating capacity. Actions would be restricted to our creed. So that that is
the end of the English version which we completed yesterday. We start with the stanza 122 of chapter 20. तेहि स्ववर्ण आश्रम वर्ण आश्रम उचित यथा उक्त अनुष्ठान सहित अग्निहोत्रादि नित्य विहित चित्त अकलंकित होई तो स्ववर्ण आश्रम उचित। अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने क्वालिटी के अनुसार, अपने सोसाइटी के, समाज के कौन से फॉर्म में हम बैठते हैं उसके हिसाब से। अभी जो आप अगर वेदांत उसके वर्ण आश्रम करते बैठेंगे तो अभी वर्ण बहुत अलग अलग हो गए हैं, आश्रम बहुत अलग अलग हो गए हैं, बट दैट इज रिमेन द सेम। What was one there, now it is class 1, class 2, class 3, class 4। वो जो अपने वर्ण के हिसाब से अभी नावी, लोहार, सुतार, चमार नहीं रहे। अभी कौन आ गए? टर्नर, फिटर, है ना, मशीन ऑपरेटर, लेथ ऑपरेटर, ये आया। So the form is changed, name must be changed, but the whole infrastructure remains the same। कर्म हमारे, हमको जो अलॉट किया है प्रकृति ने, हमको जो अलॉट किया है हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से रहना चाहिए। हम हमारी जो जीवन पद्धति है, जीवन का स्तर है, उसके हिसाब से करना चाहिए। हमें कुछ नहीं आता और बोलने का हम प्रकांड पंडित है बहुत सारे लोग हैं। पंडित का अर्थ होता है 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण जिसके पास मुखोद्गत है। और अभी तो आजकल तो कोई भी पंडित लगा देता है। तो अपने वर्ण आश्रम के उचित काम करते रहना जो हमें मिला है। अगर मैं लेथ ऑपरेटर हूं और मुझे पायलट, मैं बोलूंगा मैं पायलट हूं, मैं पायलट ये चलाता हूं, चलेगा क्या? बोलो, टेल मी, इट वॉन्ट वर्क। यथा उक्त अनुष्ठान, उसका एक्सपर्टिज्म, उसमें परफेक्टनेस लेके आना है। नित्य कर्म, हमारा नित्य कर्म करते रहना है। और अग्निहोत्र आदि विहित पूजा वो ब्राह्मण के जो लगाई गई है, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है जो करते हैं, ऐसी पूजा विधि जो तरीके से, अपना कर्म यही अपना भगवान है, अपना कर्म यही अपना सेवा है। आई टेल यू, बहुत अच्छा पूजा विधि वगैरह करने का एक साधन किसके लिए है? टू प्यूरिफाई द सोल, टू प्यूरिफाई द सोल, शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए होता है ये। क्योंकि जब तक चित्त वृत्ति शुद्ध और निर्मल और फ्री नहीं होती है, डर्ट फ्री नहीं होती है, तब तक हम हमारा विहित कर्माचरण करते रहना चाहिए। कर्म के अंदर भगवान देखना है, अपना कर्म ही अपना भगवान है। लास्ट 1-2-3 साल पहले अपने आदरणीय पंत प्रधान जी ने उन्हें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, योग कर्मेशु कौशल्यम। अपना जो कर्म है, कर्म को ही अपना योग बना दीजिए। दैट इज आराधना, दैट इज उपासना। बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि he was a frequent traveler from Badnagar, that is his native place, to the Ahmedabad or somewhere Rajkot, or I don't know details, I don't know, I don't remember, but there was a boy who was physically handicapped, but वो रेलवे के अंदर बूट पॉलिश करते रहता था। व्हेन वो बूट पॉलिश के लिए आता था नजदीक, सो ही यूज्ड टू ऑफर ए पेपर, न्यूज़पेपर ऑफ द डे, और उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा रहता था, आज का आपका दिन शुभ हो, आज का आपका सब काम अच्छे हो, आपका सब आपको बरकत मिले, ये मिले, ऐसा एक गुड विशेष रहता था। एंड ही यूज्ड टू ऑफर दैट पेपर, यू प्लीज रीड द पेपर, बाय द टाइम आई विल फिनिश द पॉलिश वर्क। By curiosity,
अवर बेलोड पीएम आस्किंग, आप ये ऐसा क्यों करते हैं? बोले मैं पेपर पढ़ने को इसलिए देता हूँ कि वो एंगेज रहते हैं, उनका दिन भी अच्छा रहता है, और बाय द टाइम मुझे मेरा काम करने को मिलता है, ऊपर से मुझे पैसे भी देते हैं। मैं सम्मान के साथ जीना चाहता हूँ, मैं भीख मांग के नहीं जीना चाहता हूँ। मेरे काम करके मुझे एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीनी है। आई एम फ्रॉम दैट कर्नाटका, वो कर्नाटका से एक छोटे से गांव में हूँ, बट आई एम हियर नाउ। वेरी गुड। अपने कार्य को, अपने कर्म को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? योग में कन्वर्ट कर दिया। He see the good part of it. He's the happiness of it. That particular person, he was getting a fresh paper. He was reading it. ऊपर से वो उसका अच्छा गुड विशेष वो लड़का अपने हाथ से लिखता था, और उसके बाद जब वो पेपर पढ़ते थे वो हैप्पीली उसको पैसे देते थे, हैप्पीली। अरे कितना अच्छा तरीका इसने इख्तियार किया है, एक्सेप्ट किया है। दिस इज कॉल्ड योगः कर्मेषु कौशल्यम। अपने काम को ऐसा डेकोरेटिव मत करो, लेकिन अपने काम को इस तरीके से ब्यूटीफाई करो कि उसमें सामने वाले को भी आनंद आएगा, सामने वाला भी आपके काम के तरीके को, द वे यू डू द जॉब सराहेगा, प्रसन्न होगा। काम तो सब करते हैं, लेकिन काम को सराहना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए सामने आदमी। Don't displease anyone, don't make unhappy. And by performing your duties, you are making someone happy. That is called aradhana. That is called upasana. By wholeheartedly, if you are getting involved in that particular job, and which is interested by you, not by to you, by God or by your superiors in form of your boss or etc. You make in such a way, you deliver your goods in such a way that your superiors, an ultimate superior, ultimate supreme, he will also become happy. Follow his divine principles. Follow his divine principles. And that is what called is भगवान की उपासना। यही तो है भगवान की आराधना, यही तो है अपने काम को योग में बदल देना, भक्ति योग में बदल देना। योगः कर्मेषु कौशल्यम। हम क्या नित्य कर्म करते हो? कब तक? अपना चित्त, अपना जो आत्मा है, जीवात्मा, जब तक वो प्यूरिफाई नहीं होता तब तक। वंस प्यूरिफाई होता है तो वो स्टार्ट एक्सपांडिंग द थिंग्स, और उसमें दुनिया फिर समा जाती है। हा एक चित्त शुद्धीचा मार्ग, दुजा सर्वसंग परित्याग, हे न आक्रमिता ज्ञान योग, कर्म भोग ची केवळ। धर्माधिष्ठित, धर्म है ना भगवान के बताए हुए सेट ऑफ रूल्स। धर्म के अधिष्ठान कर जो कर्म का आचरण आप करोगे, वो एक चित्त शुद्धि का मार्ग हुआ, जो आपने पहले स्टैंजा में देखा। दूसरा मार्ग है वो कॉमन आदमी के लिए नहीं है। सर्वसंग परित्याग करो, संन्यास धर्म ले लो, और सन्यासी वृत्ति करके ध्यानस्थ रहो, और भगवान की खोज में एकांत में चले जाओ। लेकिन सबको ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर यही नहीं जमता है आपको, तो भगवान के बारे में शाश्वत ज्ञान प्राप्त करो। योग, तप, ज्ञान, भगवान के बारे में शाश्वत ज्ञान जो है वो प्राप्त करो। नहीं तो फिर अपना कर्म मार्ग ही, ज्ञान भक्ति कर्म योग, ये 4 मार्ग है। तो कर्म मार्ग सबसे आसान है, क्योंकि कर्म से 2 गुना फायदा होता है। अपनी रोजी रोटी भी चलती है, और अपनी आराधना उपासना भी होती है, अपना योग भी
कर्मयोग भी होता है। जो आदमी अपने कर्मों से आनंद पैदा करता है वो कर्मयोगी है, नहीं तो बाकी कर्मचारी है। कर्मचारी और कर्मयोगी में यह फर्क है, समझे? ही ब्रह्म विद्या, हे उपनिषद, सर्वान देती अधिकारविद, वृत्ती न जोवरी झाली अभेद, उपनिषद बोधक शाब्दिक। अधिकारविद यानी अधिकारी व्यक्ति, authority on that particular subject। अधिकारी व्यक्ति भी वो अपने तब का जो ज्ञान का भंडार खुला किस कौन लोगों के लिए करते हैं, जिन लोगों के लिए करते हैं वो उसको लेने की कैपेसिटी रखते हैं। वो ऐसा ही सबको बांटते नहीं फिरते हैं। दे टेस्टिफाई यू। दे फर्स्ट, सदगुरु राय पहले आपको देखते हैं कि आप उसके लायक हो कि नहीं। लायक नहीं हो अगर वो चाहते तो लायक बनाते हैं, देन आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। बालामन को देखो, है ना। सर्वाभूति समरूप, सर्व प्राणी मात्र में समरूप में इक्वल प्रोपोर्शन में बैठा हुआ भगवंत का सत्य स्वरूप एक बार समझ गया, उसके सिवा अभेद ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ये मैं तो करते बैठेंगे आखिरी तक। सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में वही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर बसा हुआ है। जब ये ज्ञान होता है तब मैं तू पुनः बचता नहीं है, और यही अभेद ज्ञान है। और जब तक अभेद ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब उपनिषद का सही अर्थ, उपनिषद का सही बोध नहीं होता। अभेद ज्ञान के सिवाय अगर आप ये वेद वेदांग उपनिषद और ये लिटरेरी अपने रिलीजियस की स्क्रिप्चर्स आप जो पढ़ते जाओगे तो ये सिर्फ क्या है, शब्दों की बुलबुले है, ये बुदबुदे है, निकल जाएंगे, कुछ फर्क नहीं होगा। भगवान भी वेदों का यथार्थ ज्ञान सबको एक साथ में बांटते नहीं फिरते हैं। वो पहले लेने वाले की योग्यता देखते हैं। वृत्ती जोवरी न जोवरी झाली अभेद, उपनिषद बोध शाब्दिक। वो सिर्फ शब्दों का माया जाल होगा। तरी तो ही व्हावा लागे, जिज्ञासु आदि तोच मागे, म्हणून बाबाही पाठविले मागे, मूल करीनी सांगेले म्हणून। वेद वेदांगों का, उपनिषदों का सत्य अर्थ जानना हो तो अंग में अपने अंदर वो कैपेसिटी लाना जरूरी होता है। ऐसे मुमुक्षु जीवों को ही सदगुरु प्रदान करते हैं। अब देखिए वहां सब बैठे थे, बाबा ने बोला अरे गुरु इसमें क्या है रे, इसमें क्या इतना कठिन है। अरे वो तो जो घर से आया है वो काका साहब की मूलकर्णी, जो घर की जो काम करने वाली है, काम वाली, ये घर काम वाली तुझे ये बता देगी इसका अर्थ। बाकी के लोग बोले है उपनिषद, वो भी ईशावास्य, और वो बताएगी। बाबा ऐसे कुछ बोल रहे। मुमुक्षु जीव इस तरीके से लाइटली नहीं लेता, वो देखता है पर ब्रह्म साईनाथ बाबा सदगुरु रूप में यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ है। दास गुरु में वो कैपेसिटी थी, बाकी के लोगों में नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया, दास गुरु ने नहीं किया। ऐसे मुमुक्षु जीवों को ही सदगुरु वो संधि उपलब्ध कराते हैं, वो मौका उपलब्ध कराते हैं। दास गुरु को बड़ा क्यूरियोसिटी लगी और इमीडिएटली वो जहां से आए थे वहां वापस गए, और वो गए क्योंकि सत्य की खोज में क्या है इसका सही मानों में अर्थ, किस तरीके से वो घर काम वाली मुझे वो बताएगी, अर्थ विशद करेगी, पता नहीं था, लेकिन निकल गए, वहां आए। और साईनाथ भगवान ने जो मोलकरी, जो घर की जो मोलकरणी यानी घर काम वाली है, वो ईशावास्य उपनिषद का जो गुणार्थ है,
असमर्थपणे फाटके लेणे, समर्थपणे ही तैसेची करणे, या नाव दैन्य संपन्नपणे मिरविणे। हाँ, यही तो है वो भावनी गुणे सुख दुख। भावनाओं को झमेले में न जाते हुए सुख दुख की भावना के परे जाकर जो जीना जीता है, वो हमारी गरीबी है, अब तो फटा पुराना तो पहनना पड़ेगा, लेकिन हम अगर वो लेने के काबिल है अच्छा कपड़ा, उसके बावजूद भी अगर हम फटा पुराना पहनते हैं, इसको बोलते हैं अपनी गरीबी समर्थता से जीना। बाबा को क्या कमी थी? ये विश्व का पालनहार, तारणहार, प्रथित पालक साईनाथ भगवान को क्या कमी थी? कुछ कमी थी? कुबेर सामने खड़ा रहता था, अगर बुलाते थे तो जो थी, बाबा ने पूरे अवतार कार्य में अपना दैन्य समर्थता से जिया। कभी उनको लाज शर्म आई? क्या आने की जरूरत है? नहीं है, मैं गरीब हूं। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। आपको अगर आनंद लेना है, आपको अगर सुख लेना है। श्वेत बाबा हा बोध देते, तरी ते पुढील कार्य न घडते, एकमेवा द्वितीय नसते, ज्ञान हे कळते बाबांचे। अगर बाबा खुद ही अपने अमृत वाणी से, अमृत वचन से अगर दासगणों को समझाते तो वो दासगणु समझ पाते, क्योंकि वो मुमुक्ष जीव था, वो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता रखते थे। लेकिन अगर वो वहां बताते तो आगे की ये जो घटना घटित होनी थी वो होती नहीं थी। वो जो मिरेकुलस चीज आगे हमें अनुभूति उसकी चीजों की होनी थी, वो होती नहीं थी घटनाओं की। बाबा की ये पद्धति है बोध देने की, अपने भक्तों को ज्ञान देने की पद्धति ये है बाबा की। वो डायरेक्ट ऐसा कभी लंबा चौड़ा अर्थ विशद नहीं करेंगे, आपको अर्थ बताएंगे नहीं। एक ऐसी घटना के माध्यम से वो बराबर मायावी घटना खड़ी करेंगे। इसीलिए उनकी सर्वांतर्यामी शक्ति यहां समझ में आती है। कैसे बाबा को पता कि वो नामदेव की जो बहन है, वो काका साहब के घर में कभी बोले होंगे, नहीं बोले होंगे, क्या क्या मतलब उनको पता है। ये विश्व में क्यों, कहां, क्या, क्यों और क्या चल रहा है, सब पता है बाबा को। कुछ अगर ये शंका दासगणु अगर नहीं पूछते तो काका साहब के घर में ये घर काम वाली 8 साल की उम्र की लड़की है, ये किसको पता भी चलता? नहीं पता चलता, लेकिन बाबा को मालूम है। शायद काका साहब भी अपना है घर काम में करती है वगैरह, उनको भी पता नहीं होगा कि ये ईशावास्य उपनिषद सही में जीती है वो लड़की। विथ इन प्रैक्टिकल लाइफ जो मूल स्वभाव है, वो स्वभाव ईशावास्य उपनिषद का अर्थ विषद करता है। ये मिरेकुलस की ये ज्ञान पद्धति है बाबा की, ये बोध देने की पद्धति है। ज्ञान हे कळते बाबांचे, सर्वांतर्यामी शक्ती हमको समझ में नहीं आती थी। मग वाचुनी आणिक कोण, आहे ती काकांची मोल करीन, मीच ती ही दिदली खून, ईशावास्य जाणविले। अभी वो काका साहब घर की जो लड़की है घर की, वो कौन है? स्वयं भगवान साईनाथ ही है। उन्होंने तो ये सब घटनाएं घटित की है, उन्होंने तो ये सब माया का खेल रचा है और वो अमल में लाया है, और उसके माध्यम से ईशावास्य उपनिषद का सही अर्थ दासगणों को समझाया है। तो वो काका के मूल करेंगे, वो भी
साई का ही रूप है। वो वीरेंद्र जी ने बोला, वो सही बोला था, उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। इट्स इल्यूजन क्रिएटेड बाय साई बाबा इटसेल्फ। परमेश्वर अनुग्रह लेश, आचार्य अनुग्रह अशेष, नसता आत्मज्ञानी प्रवेश, सिद्ध उपदेशाची आवश्यक। देखिए, भगवान की आप पर जरा भी लवमात्र भी क्षण मात्र भी छोटी भी कृपा नहीं है। आचार्य विद्वानों का विशेष अनुग्रह भी आपको नहीं है, और आपको आत्मज्ञान अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष का उपदेश यही काम को आता है। अगला जो चैप्टर है वही है, सिद्ध पुरुष का उपदेश। सिद्ध पुरुष का उपदेश काम आता है। सिद्धों की जो वाणी अमृत वाणी है, वो परमार्थ मार्ग की आपको दीपिका, वो परमार्थ का मार्ग का लाइट साबित होती है। ये निश्चित आप जान लीजिएगा, क्योंकि ये शास्त्र है ना, ये शास्त्र ऐसा 1 + 1 = 2 × 2 × 4 ऐसा नहीं है। ये शास्त्र अनुभूति जन्य ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है। ये ज्ञान कहीं सिखाया नहीं जाएगा। यू गॉट टू टेक इट विथ व्हाट? यू गॉट टू टेक इट विथ योर ओन सेल्फ एक्सपीरियंसेस। आत्म प्रतिपादक जे शास्त्र, श्रवणी आणावे तेच मात्र, प्रतिपाद्य जेते मीच सर्वत्र, मदविना अन्यत्र काहीच न। प्रतिपाद्य यानी सिद्ध करने वाला, स्पष्ट करने वाला, प्रतिपादक कार्य साधक, स्पष्ट करने वाला, बोधक। आत्मा का स्वरूप जानने के लिए जो यथा योग्य ज्ञान होता है, आत्मबोध करने वाला जो भी ज्ञान होता है, जो शास्त्र है, उसका हमेशा श्रवण करना चाहिए। मैं परमेश्वर परमात्मा सर्वसाक्षी है, सर्व के हृदय में वास करने वाला सर्वठाई सर्वसाक्षी मैं ही हूं। ये स्पष्ट निरूपण जब तक हमेशा सुनते रहना है। ये जग में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो बाबा कहते हैं, सब जगह मैं ही भरा हूं, ये इसका अनुभूति स्पष्ट उपदेश हमें नहीं होता है, तब तक ये कथा सुनते रहनी चाहिए। होता आत्म तत्वाचे विवरण, तोच मी आत्मा नव्हे आन, हे जयाशी अभेद अनुसंधान, आत्मा ही प्रसन्न तयासीच। आत्म तत्व, आत्मा का यथार्थ ज्ञान, आत्मा का यथार्थ स्वरूप, ये समझ में आने के लिए और ये समझने के लिए परमात्मा परमेश्वर अन्य कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं, मेरे अंदर ही बैठा हुआ है यहाँ। ये शाश्वत ज्ञान जब प्राप्त होता है, ऐसा आत्मज्ञानी पर ब्रह्म के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, उसे हमें अनुसंधानित रहता है। और ऐसे ही जीवात्मा पर परमात्मा प्रसन्न होके उसको अपने अस्तित्व में इमर्ज करने की क्या देता है? मार्ग दिखलाता है, और उसको कहते हैं आत्मज्ञान। असे आत्म निरूपण होता, ऐसेच आत्मानुसंधान राखिता, ऐसीच निश्चल धरिता आत्मता, परमात्मा हाता येईल। ये करते रहना है। दिस शुड बी डेली ऑपरेटिंग प्रैक्टिस ऑफ द लाइफ। आत्मस्वरूप का एक बार ये ज्ञान स्पष्ट हो गया तो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी रखना सहज शक्य होता है, पॉसिबल होता है। आत्मा अगर परमात्मा से हमेशा अनुसंधानित रहेगा तो परमेश्वर की प्राप्ति तो सहज होनी ही होनी है। यानी अर्थात ये जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है, वो परमात्मा बन के रह जाता है। यही तो धीरे धीरे
अपने देह में रहते हुए भी आत्मा जब विकसित होता है, वो धीरे 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 वो संत सदगुरु राय और भगवान का स्वरूप धारण करता है। आप बोलते अरे मनुष्य मात्र में भगवान कैसा होता है? मनुष्य मात्र में ऐसा होता है। अपने यहाँ जो बैठता हुआ छोटा सा जो अंश है परमात्मा का, उसको इस तरीके से डेवलप करते जाओ, इस तरीके से डेवलप करते जाओ कि वो स्वयं परमात्मा ही उसमें समा जाए। पुढील अध्याय कथा अनुसंधान, विनायक ठाकुर आदि कथा कथन, श्रोते करो तो सादर श्रवण, परमार्थ श्रवण होईल, परमार्थ प्रवण होईल। अगला अध्याय विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, ये गवर्नमेंट ऑफिसर की है। ये आप आदर भाव से सुनिएगा, आपको सहज भाव से, यानी बस चलते चलते विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आपको आत्म परमार्थ में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और श्रोता जो है, श्रोता योजनों की परमार्थ मार्ग में और तरक्की हो जाएगी। देखिए क्या होता है। त्या ही कथा ऐशा गोड, ऐकता पुरेल श्रोतियांची कोड, महापुरुष दर्शनाची होड, पुरेल चाड भक्तांची। अगले अध्याय में, अगला अध्याय ये अध्याय के जैसा ही मधुर है, वो आप सुनेंगे तो महापुरुष के दर्शन क्यों लेना चाहिए। ये कथा सुनने से श्रोताओं की इच्छा पूरी हो जाएगी, तृप्त हो जाएंगे, समाधान हो जाएंगे। जैसा उगवता दीन मनी, अंधार दाय निर्सोनी, तेवी या कथा पीयूष पानी, माया हर पोनी जात से। जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्य देव जब आते हैं, उन सूर्य का आगमन होता है, सूर्य का उदय होता है, तो अंधेरा पूरा निकल जाता है। वैसे ठीक उसी तरह इस आध्यात्मिक कथाओं का श्रवण करने से हमें हमारी ये मोह माया के, ये संसार तापों से धीरे 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 मुक्ति मिल जाएगी। हमारे दिल में वो सिंपसाइज होती रहेंगी, वो कार्विंग होती रहेंगी कथाएं, और वो अपना आत्मा प्यूरिफाई करने में मदद करते रहेंगी। अतर्क्य साईंचे विंदान, त्याहुनी कोण करील कथन, मी तो एक निमित्त करुण, तेची ते वधून घेतील। ये तो साई का, साई की करनी है। साई सब ये करते करवाते हैं, उनके सिवा उनकी कथा कौन कथन करेगा। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, हेमाड़पंत जी कहते हैं, और मेरी भी वही भावना है। वही अपनी कथा अपने आप वही करके लेंगे। तेची ते वधून घेतील, ये अनाकरणीय स्किल है बाबा का, हमारे समझ के परे है। वो अपनी कथा खुद ही करवा देते हैं। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड पंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, ईशावास्य भावार्थ बोधनम, नामम विशोध्याय पूर्व संपूर्ण। श्री साईनाथ शुभम भवतु। सदगुरु श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, जन का कल्याण हो। संत और सज्जनों ने प्रेरणा देने से शब्द रूप में जो साकार हुआ है, शब्द के फॉर्म में ये जो साई सच्चरित आया है, और भक्त हेमाडपंत के हाथों से करकमलों द्वारा ये लिखा गया है। ऐसे साई सच्चरित का 20वां अध्याय, जिसका नाम ईशावास्य भावार्थ बोधन है, ये यहाँ खत्म होता है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। मैं चाहता हूँ मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ता हूँ, 5 मिनट चिंतन कीजिए, ये अध्याय में हमें क्या मिला। मैं ऐसे गया और ऐसा आया, तब तक आप आपस में डिस्कस कीजिए। गेट द नेक्टर फ्रॉम experts, get the nectar from good souls. I'm just coming within 5 minutes. Should be restricted to our creed. We should purify ourselves with routine activities, panacea, worship of fire, etc. We should continue this till our mental frame becomes spotless. This is one method of purification. Other method is to sacrifice everything and meditate. If this is not possible, we should try to understand the God, the absolute truth, Jnana Marga.
Otherwise, our path of actions remains unfulfilled. Thus, Upanishads understanding is supreme. Without this understanding, Upanishads are only play of words. The preacher also do not offer this knowledge unless the devotee is good enough to grasp the subject. One requires ability to understand Vedas. The preacher gives opportunity to such persons desirous of liberation. That is why Baba had sent him to parley at Kakasaheb Dikshit's house to get clarification from the maid servant. This surprising event would not have happened if Baba himself would have clarified the doubt. Baba is omnipotent. Baba's omnipotent capacity would not have been realized. The soul of maid servant is me only, NSI only. He had shown that he had given the knowledge of Upanishads and explained it through her activities. If one has no blessings of God, preacher, or gentleman, the advice of saints only help. Siddha Purush only help. The speech of saints is the indicator on spiritual path. Always listen to the science which explains absolute truth, self-realization. God is everywhere and witness of everything. This is nothing else except me. There is nothing else except me. I am present everywhere. The speeches explaining this truth should always be listened to. The knowledge of supreme truth, nobody except me is God. This type of permanent knowledge relates one to God, and God blesses this sentient soul. On understanding absolute truth, continuously relate to soul. Once you are continuously related to soul, you realize God, you realize yourself. The sentient soul becomes supreme truth. There will be stories of Sri Vinayak Harishchandra Thakur and other in next chapter. The listeners will progress on spiritual path by listening to these stories respectfully. They will progress towards absolute truth. The stories in next chapter are equally sweet. The listeners will be happy and satisfied and get opportunity to see the great saints. As darkness disappears on rising of the sun, the devotees will get liberated from illusion of worldly affairs by listening to the stories. Sai's actions are unimaginable. Who can tell these stories except he himself? Sai will direct me and get them written through me. स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते हेम भक्त हेमाड़ पंत विरचिते श्री साई सच्चरिते ईशावास्य भावार्थ बोधन नामम विश्वोद्धर्यः संपूर्णा श्री साईनाथार्पणमस्तु शुभम भवतु. Chapter 21. श्री साईनाथाय नमः. अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 21. अध्याय 21. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री कुलदेवताय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः. श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः. गणेश जी या आद्य देवता को नमन, सरस्वती देवता को नमन, गुरु देवता को नमन, कुल देवता को नमन, सीतापति रामचंद्र प्रभु इनको नमस्कार और सदगुरु श्री साईनाथ भगवान को नमस्कार. ये जो अध्याय है, जो ये संत मंडली होती है, शुद्ध पुरुष, ये जो people who lives a higher state of life while living this materialistic world, how they are connected with each other, वो दर्शाती है.
नॉट ओनली दैट, किन जो किस जीवात्मा का उद्धार किस सिद्ध पुरुष के हाथ से लिखा हुआ है वो भी ये दर्शाती है। ये जो मिराकुलस जर्नी है ना नरसिंह स्वामी महाराज का, वैसे ही जर्नी ये हरिश्चंद्र विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर इनकी है। बहुत बढ़िया कथा है। इस ये दर्शाती है सदगुरु अपने भक्तों को अपने पैरों के पास अपने नजदीक में कैसे लाते हैं। इफ इट इज इन योर, आपके नसीब में हो, आपके डेस्टिनी में हो, तो आप अपने आप ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आप उनके चरणों में चले जाते हैं। आपका उद्धार उधर लिखा हुआ होता है। इसमें आपका एफर्ट्स कुछ नहीं होता। वो जो बहुत है ना, मैं हम गुरु किया है, गुरु भी कुछ करने की डरने की चीज नहीं है। गुरु सदगुरु तो अपने जीवन में अपने आप प्रकट होता है। उनका अस्तित्व अपने आप अपने वो जीवन में प्रवेश कर देता है और अपना उद्धार करता है। हाँ, यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। गुरु नसीब से मिलेंगे, लेकिन अपने कर्मों से उनको टिकवाना है अपने आयुष्य में, अपने जीवन में। ये आपके हाथ में है। शुरू करते हैं। गताध्यायंती कथानुसंधान, ठाकुर आदि का महापुरुष दर्शन, कैसे झाले ते करावे श्रवण, एकाग्र मन करोनी। 21वें अध्याय के आखिरी 20वें अध्याय के आखिरी में आपको बताया गया था कि श्री ठाकुर और अन्य जो भक्तगण है उनको महापुरुष के दर्शनों का योग कैसे जमकर आया, कैसे हुआ, उनकी कथा मैं आपको बताऊंगा। तो वही कथा, वह मिरेकुलस कथा जो है, स्टोरी है, अभी आप मन एकाग्र कर पढ़िए, आदर पूर्वक आदर भाव से वह सुनिए। काया कायतया वक्त्यांचा बोले, श्रवणी जे पडता श्रोता न डोले, अंगीचा रुमांचे न हाले, व्यर्थ गेले ते बोल। जब वक्ता अपना निरूपण किसी विषय का करता है, उसके वाणी का प्रभाव ऐसा चाहिए कि सुनने जो लिसनर्स है और सुनने वाले और देखने वाले एकदम मंत्रमुग्ध होकर, नील तल्लीन होकर, एकाग्र चित्त होकर वो उस विश्व में, वो विषय में के बारे में डीप अंदर होना चाहिए, डीप अंदर जाना चाहिए। उनका मन ऐसा डोलने लगना चाहिए। तन तो डोलता ही है, मन भी डोलना चाहिए। अगर उनकी सामने प्रीचर बोल रहा है, उसके वाणी का कुछ प्रभाव नहीं है, वो विषय की सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक तरीके से निरूपण नहीं कर पा रहा है, और जो निरूपण का उद्देश्य है कि सामने वाले के चित्त वृत्ति में जरा थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, उसके दिल में कुछ ना कुछ तो इंस्पायरेशन का इग्निशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वक्तृत्व के वो जो वक्ता है, वक्ता के वक्तृत्व को कुछ अर्थ नहीं। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो होनी बहुत जरूरी है। जया श्रवणी न श्रोते रिजले, बाष्प गदगद कंठ न दाटले, नयनी प्रेमा आनंदाश्रु न वाहिले, व्यर्थ गेले ते कथन। जो वक्ता, जो नैरेटर है, वो अपनी मधुर वाणी से, इफेक्टिव बोली से, वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, निरूपण की वैसी अपनी एक स्टाइल, ऐसी अपनी शैली है। अगर उसने अपने श्रोताओं का मन नहीं जीत लिया या श्रोताओं के मन को इंस्पायर नहीं किया और उनको वो कथा के डीप अंदर में वो जो अगर नहीं लेके गया और वो डीप लेकर जाकर उसके अष्टभाव अगर वो श्रोताओं के जागरूक नहीं होते, उनके आंख से आंसू नहीं आते और उनको
बड़े प्रसन्न भाव अगर नहीं लगता है, बड़ा सेटिस्फाइड लगता है कि यस इट इज वर्थ लिसनिंग टू दिस पर्सन, ऐसा जब तक नहीं लगता है तो वो वक्तृत्व का क्या काम है? ऐसे लोगों ने बोलना नहीं चाहिए, कुछ फिजूल का है। वाणी बाबांची मनोहारिणी उपदेशाची अलौकिक सरणी, जयांची प्रतिपदी अभिनव करणी, मस्तक चरणी दयांचे। बाबा की बोध पद्धति हमने देखा कि बाबा की बोध देने की पद्धति बहुत विलक्षण है, अलग है। जगह जगह पर, पद पद पर बाबा ऐसे अगध लीलाएं घटित करवाते हैं और वो लीलाओं के माध्यम से अनुभूति जन्य, अनुभूति जिन्हें ज्ञान देते हैं, अनुभूति के माध्यम से वो ज्ञान मिलता है। ये साई की अजब करनी है। मैं साईनाथ के चरणों में अपना मस्तक अर्पण करता हूं, मस्तक चरणिताय से, ऐसे साईनाथ भगवान के चरणों में मैं माथा टेकता हूं। न येता दैव उदयासी, गाठी न पड़े साधु संतांशी, तो धड़ अस्ता उषापाशी, पाप राशि से दिशे न। अपना भाग्य का उदय का काल आने के सिवाय, आने के सिवाय साधु संतों की भेंट नहीं होती है। ये सही सच है। मैंने बहुत बार बहुत अपने सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से ये महसूस किया है, ये अनुभूति ली है कि साधु संतों का मिलना आपके जीवन में पूर्व संचित, पूर्व घटित होता है, पूर्व लिखित होता है। और एक बार साधु संत और सदगुरु अपने तकिया के पास होते हैं, अपने समीप होते हैं, अपने नजदीक होते हैं, तो प्रारब्ध के भोग, गत जन्मों से जो एक्यूमुलेटेड जितने भी सीन्स है वैनिश हो जाते हैं, क्लीन। यू आर ऑल accumulated, this one is finished and you become the pure soul. इसकी ये जो प्रमेय है, ये सिद्धांत जो है, ये जो इक्वेशन है, पारमार्थिक इक्वेशन आप बोलिए इसको, इसका अनुभूति लेने के लिए क्या बोलते हैं वो अभी पढ़ी है। इसका अगर आपको अनुभूति पाना है तो वो क्या बोलते हैं, या प्रमेयाचा सिद्धतेशी, न लगे जावे देशी विदेशी, मिथ माझिया अनुभवासी, श्रोतियासी कथितो की। ये जो मैंने अभी ऊपर ओवी में कहा है कि भाई अपना भाग्य का उदय होने के सिवाय हम संतों के बारे में सुनते भी नहीं, संतों की महिमा भी अपने कान में नहीं आती है, संतों का सहवास हमें मिलता नहीं है, और एक बार उनका सहवास मिला तो अपने गत पाप की राशि सब निकल जाते हैं। ये जो इक्वेशन है, स्पिरिचुअल इक्वेशन बोलते हैं इसको, ये सिद्ध करना हो या उसके सपोर्ट में मुझे अगर कुछ एग्जाम्पल्स देने हो तो यहाँ आज भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, हेमाडपंत कहते हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि साईं भगवान ने मुझे जो अनुभूति दी है वो अनुभूति के जरिए मैं ये सिद्ध कर सकता हूं। आप सदगुरु के पास जाने के पहले सदगुरु आपका इंतजार करते रहते हैं। सदगुरु ऐसी आजू बाजू में ऐसी घटनाओं की श्रृंखला मालिका तैयार करते हैं सो दैट अपने आप वो उनके चरणों में जाते हैं। वो जो अनुभूति है मैं आपको अभी श्रोताजन को स्पष्ट करने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे ख्याल से वो कंटिन्यूटी रखने के लिए हम यहाँ ब्रेक लेते हैं। चाय भी आई है। मैं आपको जो पेपर वर्क की बात किया था ना कल, और जब वो मैं ये करता था, इसको वो कलर किया, ये एक्चुअली स्टोन है अपना ये, और आप बहुत नजदीक जाके देखिए इनको, ये देखिए जो
राइट साइड में ट्रंक है, और आपको लगता है ये गणपति, तो कुछ न कुछ इसमें अंश, कुछ मात्रा है ये उनके यहाँ। देखिए, ये देखिए, जब वो वीरेंद्र जी तरखड़ का मैंने वो उनके पिताजी का, ज्योतिन्द्र जी का वो पेपर वेट की बात किया, तो मैं सहज भाव से अपने अपने टेबल पर ये जो पेपर वेट जो मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे वो पेंट करके दिया था, स्टोन दिया था, तो मैं देखा, अरे यहाँ तो कृष्ण गणेश भगवान नजर आ रहे हैं। तो इमीडिएटली लिया, माथे पे टेका और अपने पूजा घर में रखा हूं। जस्ट देख लीजिए, मुझे लगा आपको शायद कुछ हो तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। प्लीज टेक ऑन। जयश्री, it is there in our mandir. That is at my brother's place. Yeah. It was Vasai. You see, these divine things, they are for worshipping forever. So that will go on. You see, this cannot discontinue. And particularly that Ganesh Murthy, Sai himself had said, की आहे आपला मुलाचा हात तुटला तर त्याला काय आपण विसर्जित करतो का? So these were the sayings of Sai, you see. So it will not vanish from this earth. It will continue. This is the most important thing in that particular lesson. See, Pawar Kaka is telling things in a very lighter way regarding stone and the murti and all that. But see, what matters is, you know, these Tarkad people, I mean, all that generation, my grandfather, my great-grandfather. Actually, this story is of my grandfather. Actually, he bought that Ganesh Murti. No. But important thing to tell all side is because you see these Tarkad people, although they were Hindu, they were all Hindu, you see, but they were following all British etiquettes in the house also. You know, sitting on the table, keeping that. Everything was British. You see, they were not eating by hand. They were eating with kanta chamcha, all the fork and spoon. So these are all English etiquettes. And Murti Puja is the last thing that they would do. So this is all the background. So in order to, you know, give a break, you see, like what we are all trying, we are wanting to break the chain of Corona. So similarly, Sai wanted to break this chain. You see, you must, you are Hindu, so you should do the Murti Puja. There is nothing wrong in that. So that incident has taken place. Whereas my grandfather was forced to buy that Murti. You see, money was not a issue there because at 8 rupees and 80 rupees is not a big thing for my grandfather. So he did that. But he never realized this is a
what we call Ujvya Sondecha Ganpati. That is, the trunk is turned on the right and not on the left. And such Ganeshas are not worshipped. So Sai did that a trick कि वो गणेश मूर्ति भी ऐसे लेके दिलवाया जो कि ट्रंक इज टर्न टू द राइट है, तो आप पूजा करेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे. So this was the taste of all those people, and they passed that taste. So these are all Sai Leelas, you see. These Leelas have to take place. And today we can only enjoy these things, you see. But those people, they have to go through that taste and succeed. So this is what the Sai devotees to understand. The taste will come and you have to pass that taste. And you will pass, you see. If your devotion is true, it is a selfless devotion. You keep it more important. It will happen, you see. Yeah. Right. Thank you for this nectar. Shall we start that story of chapter 21? So, thank you, Virendra ji, with your blessing. Yeah, thank you. So, ये जो spiritual equation मैंने आपको बोला, जो आपके न येता दैव उदयासी गाठी न पड़े साधु संतासी, हमारे जीवन में हमारे सदगुरु का प्रवेश, साधु संतों का प्रवेश, हमारा भाग्य का उदय काल जब आता है तब होता है. And this is universal truth, ultimate truth. हम गुरु नहीं करते हैं. हम अगर गुरु की पढ़ते हैं तो भी भगवान की ही करनी होती है. भगवान ही हमें वो प्रेरणा देते हैं, सदगुरु की खोज में निकलो. लेकिन आपके जीवन में सदगुरु का प्रवेश जो होता है वो सदगुरु की इच्छा के अनुसार होता है, आपके अनुसार नहीं होता, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता. इस मामले में खुद को अगर वो उदय काल नहीं आया है और उसमें आपका वो मिलना जुलना नहीं तय हुआ है तो नहीं होगा. इस आशय की कथा स्वयं हेमाडपंत जी कह रहे हैं. अभी एक साधु पुरुष के मामले में वो अभी देखिए, साधु पुरुष के विषय में वो आप सुनिए. पीर मौलाना नामे प्रसिद्ध, होते वांद्रे शहरी सिद्ध, हिंदू पारसी परधर्मी प्रबुद्ध, गीति शुद्ध दर्शन थे. अभी मौलाना बाबा का जिक्र और उल्लेख, इसका वर्णन जगह जगह पर आया हुआ है. अपने भावार्थ साहित्य सच्चरित्र में भी इनका फोटो और इनका जो मुजावर है, यानी इनका जो शागिर्द है, सेवक है, पुजारी के बोल सकते हैं, वो जो मुजावर है यूनुस नाम का, उनकी भी तस्वीर दी हुई है. ये मौलाना बाबा वीरेंद्र जी की किताब में बहुत अच्छी रोचक कथा इसमें लिखी हुई है, जिनकी वजह से उन्होंने कहा था, मौलाना बाबा ने, माही तू मेरी केस नहीं है, तू केस मेरे भाई की है, वो शिरडी में रहता है, इसके लिए तो तरखड़ आजी वहां गई है. ज्योतिन्द्र जी उनको लेके गए हैं. ये वही मौलाना बाबा है. मौलाना बाबा की जो दरगाह है ना, वो बांद्रा, बॉम्बे में बांद्रा स्टेशन है. आप वेस्ट में उतरो, लास्ट ईयर एंड में, म्हणजे बॉम्बे एंड में उतरो, वहां से वो जो ओवर ब्रिज चढ़ के चले जाओ. अभी आजकल वो वॉकवे बांधा है, पहले वॉकवे नहीं था, अभी वॉकवे बांधा है. जहां वॉकवे खत्म होता है वहीं एक बहुत बड़ी मस्जिद है. वो मस्जिद के पिछवाड़े में ये बाबा की दरगाह है. मैं वहां स्वयं गया हूँ. बहुत एक पवित्र स्थान है. और आपको बताऊं, यहाँ मजार है,
ये इनकी मौलाना बाबा की तो मजार है ही, यूनुस मुजावर उनकी भी वहां कब्र है। अमीन सयानी के फादर की है वहां। अमीन सयानी's father was अमीन सयानी, a great कमेंटेटर, सिलोन, रेडियो सिलोन में अगर पुराना पढ़ा होगा आपने, बिना खाकी तुम्हारा, वो जो अमीन सयानी है, उनके जो फादर है उनकी भी समाधि यहाँ है। He was very closely connected to the मौलाना बाबा। तो वो लिखते हैं, मौलाना पीर नाम के जो सिद्ध पुरुष जो बांद्रा शहर में रहते थे, ये महापुरुष के सब जाति धर्मों के लोग, हिंदू, पारसी, परधर्मी जितने भी है वो उनके पास जाते थे। He was a symbol of national integration। सब धर्मों के इंटीग्रेशन के वो प्रतीक थे बाबा के जैसे। मी ते शहरचा न्यायाधीश, मुजावरतयांचा नाम युनुस, पाठ पूर्वीली रात्रंदिवस, यावया दर्शनास त्याने तयाने। अब बांद्रा शहर में, चूंकि रहने वाले भी हिमड़पंत जी बांद्रा में थे, मेरे ख्याल से सेंट मार्टिन रोड कुछ है वहां, मैं गया हूँ वहां, तो वो जो है, और बांद्रा शहर के ये न्यायाधीश थे, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे वो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो उस वक्त उनकी नियुक्ति वहां बांद्रा शहर के न्यायाधीश करके थे। तो ये जो उनका जो मुजावर है यूनुस, इसमु मुजावर बोला है, लेकिन एक जो उनका नाम यूनुस भाई है, वो यूनुस भाई हमेशा हिमड़पंत जी के पीछे पड़ते थे कि आप आइए ना एक बार दर्शन के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, आप आइए। वो पीछे पड़ा था। यानी ये जो मस्जिद दरगाह वगैरह जो है, वो मौलाना उनकी जो सेवा करने वाले जो सेवक होते हैं, जैसे अब्दुल बाबा के थे, मुजावर बोल सकते हैं उनको, बाबा ने बहुत बड़ा ओहदा उनको दिया, लेकिन इस तरीके का जो ये है वो से यूनुस भाई थे। यूनुस भाई मौलाना बाबा के शागिर्द थे, तो उन्होंने बहुत सारी बात कन्विंस करने की कोशिश की हिमड़पंत जी को, कि आप आइए। वो हमेशा कहता था, हजारों लोक येथे यावे, किमर्थ आपण तेथे जावे, बेड भाडेच्या भरी भरावे, आचवावे निज लौकिका। अब मुझे वो बुलाता था, लेकिन मैं नहीं कहता था, हजारों लोग वहां आते हैं, हमको क्या जाने किस लिए जाना चाहिए, वो क्या बोलता है करके उसका दिल रखने के लिए वहां जाना चाहिए, ऐसी क्यों करना चाहिए हमें, भीड़ यानी बस उसका दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए जाना मुझे नहीं आता है। और मैं तो शहर का न्यायाधीश हूँ, न्यायाधीश को वहां जाने के लिए मेरा अपना एक रुतबा है, मेरा अपना एक दर्जा है, वो दर्जा छोड़ के मैं वहां क्यों जाना है। लोग टीका भी करेंगे, शहर के न्यायाधीश देखो मौलाना बाबा के नात को लग गए, एक फकीर के नात को लग गए, लोग बोलेंगे, तो ये आलोचना होने से हम अपना दूरी रहेंगे। ऐसे काही मुनी भावावे, दर्शनास कधी न जावे, आपणची आपल्या छायेस भ्यावे, दुर्दैव यावे आडवे। वो क्योंकि वो जो भेंट वो तय नहीं थी, नसीब में थी नहीं। ऐसे कुछ संकल्प विकल्प आते थे, मन में अलग अलग के विचार आते थे, और दर्शन को मैं कभी गया ही नहीं। हमारी छाया जो है, हमारी जो शैडो है, उसको डरने के जैसा हो गया ये जो हमारा दुर्दैव जो है, बैड फॉर्चून, ये आड़े आता था बीच में हमारी। ये मैं बांद्रा में, वो भी मौलाना बाबा भी बांद्रा में, वो मुझे बोलता भी था, आप आइए, हजारों की तादाद में लोग जाते भी थे वहां, लेकिन मैं नहीं गया, कभी जाने का दिल ही नहीं हुआ। क्यों? लोक लाज कारण। और इसीलिए मेरा, सही बोलो तो ये कम नसीब वाला हूं मैं, ऐसे हिमड़पंत जी कह रहे हैं। ऐसे कित्येक वर्षे गेली, तेथून पुढे बदली झाली, पुढे जेव्हा ती वेळ आली, शिर्डी जोडली अखंड। ऐसे कितने बहुत साल गए, वो इसमें मिलता, यूनुस भाई बोलते थे आ जाओ पे, लेकिन मैं नहीं गया। बाद में मेरा तबादला हो गया, वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया, बढ़ती हो गई मेरी, अपना वो
वहां से बदली हो गई मेरी। अब जब वो टाइम आ गया कि भाई दिमाग में आया जाना चाहिए था, लेकिन तब तक मेरे जीवन में मेरे जो नियत सदगुरु साईनाथ वो आ चुके थे, और मैं उनके साथ अखंड भाव से शिरडी में तन मन धन से जुड़ गया था। ये जो यूनुस भाई है, यूनुस भाई की अभी चौथी पीढ़ी वहां काम करती है। मैं उनको जाके मिल के आया हूँ, वहां भी उनकी कब्र के दर्शन लेकर के आया हूँ, और मौलाना बाबा के भी दर्शन करके आया हूँ। तात्पर्य संत समागम अभाग्या सनाते थे रिगम, होता ईश्वरी कृपा सुगम अन्यथा दुर्गम हा युग। तो सारांश में मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आपके भाग में नहीं है तो वो दर्शन नहीं होंगे, और ईश्वर की कृपा अगर आप कर हुई तो इमीडिएटली हो जाएगी, नहीं तो आपके नसीब में ये योग नहीं आएगा कभी भी। ये हमेशा याद रखिएगा, आपके नसीब में होगा, नसीब को लिखा कोई मिटा नहीं सकता। आपका दर्शन साईं बाबा को, उनके चरणों में आपको बुलाना है तो लाते ही है, आप वहां जाते ही है, क्योंकि आप साईं बाबा के होते हैं। अगर आपके आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते, बहुत सारे लोग मैंने देखा हो सालों साल बीत जाते, वो नहीं जा सकते क्योंकि उनके नसीब में नहीं होता है, उनका नसीब भाग्य का उदय काल नहीं आया होता है। ये विषयीची गोड कथा श्रोता सादर परिशिजे आता, या संतांच्या अनादि संस्था गुह्य व्यवस्था कैसे आता। इस विषय की, इस आशय की कथा मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूं। आप श्रोतेजन शांत भाव से उसको सुन लीजिएगा। संतों के अनेक क्षेत्र भगवान ने निर्माण किए हुए हैं जगह जगह पर, और उनकी एक व्यवस्था की हुई है। आंतरिक एक सूक्ष्म लहरी से, वेव से ये जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन जुड़े हुए हैं सूक्ष्म व्यवस्था से, जो कैसे कनेक्टेड है तो वेव की वजह से, वैसे ये संत जन जो है ये एक आंतरिक सूक्ष्म धागे से, इनविजिबल धागे से कनेक्टेड है एक दूसरे से, दे आर कनेक्टेड। और ये भगवान की गुण व्यवस्था है। ये जो सृष्टि का संचलन करने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे स्थान, संतों के स्थान क्रिएट किए हुए हैं। यथा काल वर्तमान जया जय जय आवड़े स्थान, अवतार घीति कार्य कारण परिते अभिन्न परस्पर। उचित काल पर, उचित स्थान पर और उचित परिस्थितियों में अपने इच्छा अनुसार संत जन अवतार लेते हैं, उनका इनकारनेशन हो जाता है। लेकिन ये जो जितने भी संत मंडली है दुनिया भर में, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी आज के 100 साल पहले, अभी आज हमको ये बता सकते हैं, देखो ये कैसे कनेक्टेड है, वे उसके माध्यम से कनेक्टेड है, यूनिक आइडेंटिटी के माध्यम से कनेक्टेड है ना, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये 100 साल पहले की बात है। एक दूसरे का लिखा हुआ खत भी 10 दिन, 4 5 दिन के पहले नहीं पहुंचता था, तब की ये बात है। ये संत दो क्षेत्र अलग अलग जगह कभी दुनिया नहीं मिले होंगे, कभी जिंदगी में कभी उनके दर्शन आपस में नहीं मिले होंगे, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं। They are all substations of भगवान। तो ओरिजिनेटर, वो जो पावर जनरेशन के जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लगे रहते हैं ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो सब स्टेशन थे, ये सब स्टेशन होते हैं संत जन। देश काल वस्तु भिन्न परी एकाची जी ऊन खून, दुजा संत जाने संपूर्ण अंतरी एकपन सकड़ी का। ये जो संत जन है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में,
अलग अलग काल मापन पर प्रकट होते हैं। उनका अस्तित्व, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में आए हुए होते, वो अलग लगता है, आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका अंतःकरण से एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए एक संतों ने दिया हुआ आदेश, एक संतों का दिया हुआ उपदेश दूसरे संतों को जैसा कि वैसा विद माइन्यूट डिटेल्स मालूम होता है। ये जो कथा है वो वैसी है। जैसी सार्वभौम राजाची ठाणी, वसविली असती ठिकठिकाणी, तेथे तेथ अधिकारी नेमुनी आबादानी संपादिती, यानी आपादिती यानी प्रगति, प्रोग्रेस, वैभव, अपलिफ्टमेंट, व्यवस्था बनाने के लिए। आबादानी यानी व्यवस्था। सार्वभौम जो राजा है वो क्या करता है, सब पृथ्वी पर एक सुप्रीम राजा होता है, और वो जगह जगह पर अपने मांडलिक राजा बना देता है या सरदार बना देता है, प्रदेश अधिकारी बना देता है। वहां उन लोगों को, वहां अधिकारी का वो क्या करता है, अपॉइंट करता है, और अपॉइंट करके जो समाज की व्यवस्था है वो व्यवस्था देखते रहता है, व्यवस्थापन कुशलता से वो संभालते हैं। जैसे अभी केंद्र स्थान में हमारे पास हमारे महामहिम राष्ट्रपति है। ये सार्वभौम राजा की अगर उनको इक्वल देखा जाए तो जगह जगह के जो गवर्नर्स है, जगह जगह के जो मुख्यमंत्री है, जो व्यवस्था है, वो अधिकारी वो प्रदेश के है, और वो भी अपने अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से सब एक एक प्रदेश को अपॉइंट करते हैं व्यवस्था रखने के लिए। ऐसा ही आध्यात्म मार्ग में भी सर्वश्रेष्ठ वो जो भगवान परमेश्वर है, परमात्मा प्रभु, वो संतों के माध्यम से, अवतारी पुरुष के माध्यम से, सिद्ध पुरुष के माध्यम से, सद्गुरु तत्व के माध्यम से ऐसी जगह जगह पर व्यवस्था रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तैसात हा स्वानंद सम्राट, जागो जागी होनी प्रकट, चालवी हा निज राज्य शकट, सूत्रे अप्रकट हलवी। ठीक उसी तरह भगवान भी क्या करते हैं, स्वानंद सम्राट, स्वानंद राज्य के स्वानंद साम्राज्य अधिपति भगवान, वो भी अपनी व्यवस्था जगह जगह पर, ये जो संत जन होते हैं, सिद्ध पुरुष अवतारी पुरुष होते, उनके माध्यम से अपना राजपाट चलाता है। और ऐसे, और उनकी जो सूत्र है, उनका जो कंट्रोल है वो इनविजिबल होता है, हमें नहीं समझ में आता वो, लेकिन होता जरूरी है। गुप्त तरीके से, बहुत ही गूढ़ तरीके से, सीक्रेट वे से उनका वो कारोबार चलाते हैं। एकदा एक आंग्ल विद्या विभूषित, बीए या उपपदाने युक्त, जे हळूहळू मार्गक्रमत झाले नामांकित अधिकारी। एक उस वक्त उच्च विभाग विद्या विभूषित, बीए होना बोले तो, ग्रेजुएट होना बोले तो बहुत बड़ी बात होती थी भाई। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अगर शिक्षण लिया है वो आप, अरे क्या कहने, बैचलर ऑफ आर्ट्स उस वक्त बोले तो ग्रेजुएट, अरे बहुत बड़ा ग्रेजुएट है। और यह भी अभी तक था, 50-100 साल तक के, 50, 60, 70 साल तक तो यही था। अरे आपको पता है, फॉरेन से कोई अगर विजिट करके आता है तो अपने नेम प्लेट पे लिखता था फॉरेन रिटर्न। पदवी होती थी, वो उपाधि होती थी एक। बीए बोला तो इतने आदर भाव से देखा जाता था लोगों को। तो उस वक्त की कथा ये बाबा के जमाने की, 100 साल के ऊपर की, बैचलर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सीखे हुए उच्च विद्या विभूषित ऐसे जो अधिकारी व्यक्ति थे, शासकीय गवर्नमेंट ऑफिस में वो ज्वाइन होके धीरे धीरे बहुत बड़े पद पर पहुंच गए थे। वो मिळाली पुढे मामलत, वाढता वाढता झाले प्रांत, तयासी साई बाबांचा सांगत, सुदैवे प्राप्त झाला,
आगे चल के ये आदमी तरक्की होके होके मामलतदार बन गए, यानी आज के तहसीलदार। एक तालुका होता है, वो तालुका के रेवेन्यू के इंचार्ज, गवर्नमेंट के तहसीलदार आज के, उस वक्त मामलेदार बोलते थे उनको। उसके बाद प्रांताधिकारी, ऐसे एक प्रांत के अधिकारी बन जाते हैं, 2-3 जिले के, 2-3 जो ऐसे थाने होते हैं, एक 4-5 थाने के, एक जो उनको एक सर्कल पर होता है, वो सर्कल के अधिकारी बन जाते, उनको प्रांत अधिकारी बोलते हैं। यानी आज का अगर बोलो तो डिप्टी कलेक्टर का उनका ओहदा होता है। ये उनको अपने नसीब से साईं बाबा का दर्शन का योग कैसे आया, वो कथा है। दिसाया ही मामलत बरी, डोंगरी देशी दुरुने सादरी, निकट जाता वेडिली काजरी, काजरी यानी काटोगरी, माने परी ती मोठीच। अगर आप कुचला वो खाज खुजली बोलती है, जिसमें वो अगर तो लगती है ना तो बड़ी खुजली होती है, वो कुचला बोलते हैं उसको, काजरी यानी वो काचला। ये जो मामलेदार पद होता है, आपको दिखने में अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा का है, उस वक्त बहुत प्रतिष्ठा थी इसकी, लेकिन बहुत ही जटिल और काम है, बहुत ही झंझट का काम है ये। आपको दूर से जो पर्वत दिखते हैं बहुत कितने लुभावने सुहावने होते हैं, कितना अच्छे लगते हैं, लेकिन आप नजदीक जाओ तो वो चढ़न उतर, खाई, ऊपर आना, पत्थरों से भरा, कांटों से भरा हुआ, वो नजदीक है। यानी दूर से पर्वत अच्छे लगते हैं, ये जो कहावत है वो सही है, दुरून डोंगर साजरे बोलते हैं। वैसा ही ये पद है, कब किस वक्त क्या होगा बता नहीं सकते। यानी जहर का प्याला विष का पदी है, निकट जाता विडिली काजरी, ये जो विषैली जो वनस्पतियां होती है काजरी जैसी, वो काजरी के जैसे ये पूरा घेरा हुआ रहता है ये पद। हमेशा एक तो प्रेशर होता है, समाज से प्रेशर, काम से प्रेशर, ऊपर के अधिकारियों से प्रेशर, पॉलिटिशियन से प्रेशर, सब जगह से प्रेशर होता है इनके ऊपर। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये मामलेदार है ना, ये जो तहसीलदार, ये विषैली वनस्पतियों से घिरा हुआ रहता है। गेले ते पूर्वील गोड दिवस, जय होती या अधिकाराची हौस, प्रजा ही मानी अधिकारियास परस्परास आनंद। अभी इतना आसान नहीं रहा वो, उस वक्त बहुत उसका मान प्रतिष्ठा मानी जाती थी। अरे हम देखते थे प्रांत अधिकारी आया बोले तो एक बहुत बड़ा जल्लोष होता था गांव में, प्रांत अधिकारी आया और मामलेदार आया तो वाह क्या कहने, हमारे तालुका के अधिकारी हमारे पास आए हैं। हमने खुद महसूस किया, हमारे घर में वो कुछ प्रौढ़ साक्षरता दिन था, मैं बहुत छोटा था तभी आए थे। आयुष्यमान यशवंत म्हणतात, येतो मी तिथे आज आलेत का बाकी सगळे? बांडोरकर आले, हाँ मंजित काय आलेलं नाही। ओके, ये तो सो उस वक्त बहुत बड़ा रुतबा होता था, बड़ा प्रेस्टीज होता था ये लोगों का, मामलेदार, प्रांताधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, और बाप रे, यानी ये एक तरह के वो पर्टिकुलर इसमें अनभिषिक्त राजे, यानी जिनका कुछ अनऑफिशियल राजे ही थे लोग, सरदार लोग थे ये। प्रजा भी उस वक्त अधिकारियों को बहुत मान रखती थी और आपस में उनके भाईचारे के अच्छे संबंध भी रहते थे। प्रजा और अधिकारी दोनों को भी इसका आनंद मिलता था। लेकिन आपका हाल मत पूछो, ये कौन लिख रहे हैं, ये हेमंत पंजी लिख रहे हैं, वो भी आज की 100 साल पहले की बात है, उस वक्त वो लिख रहे हैं, आज के तो बहुत खराब है। पुसूने आताचे हाल, सुखाची नोकरी गेला तो काळ, आता जबाबदारीचा सुकाळ, ओला दुकाळ पैशाचा। अभी बहुत जिम्मेवारियां बढ़ा दी है, ये 100 साल के पहले का डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है। जन जागृति
बहुत हो चुकी है, तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। पहले जैसी आरामदेह नौकरी नहीं है अभी, वो सुख की नौकरी नहीं रही, रिलैक्स होने की। अभी पैसा भी इतना नहीं मिलता है जितना होना चाहिए, यानी पैसा जो मिलता है यानी ओला दुष्काल सब ज्यादा मिलता है, लेकिन वो दुष्काल यानी वो ड्रॉट गिरा तो पानी नहीं है, लेकिन ज्यादा गिरा वो भी तो एक तरफ अकाली है, ज्यादा वर्षा का। पैसे बहुत मिलते हैं लेकिन वो फलीभूत नहीं होते हैं और उसका समाधान भी नहीं मिलता है। पैसे पैसे का समाधान नहीं मिलता है। पूर्वील मामलतीचा मान तैसेच पुरील प्रांता समान, वैभव आता न ये वैभव आता ये ना दिसून नौकरी कसून करता ही। आगे पहले पुराने जमाने में एक बहुत बड़े संस्थानिक होते हैं ना, वैसा इनका रुतबा था, बहुत प्रतिष्ठा मान वगैरह सब मिलता था। प्रांताधिकारी को तो इतनी प्रतिष्ठा और इतना बहुमान मिलता था और इतना वैभव मिलता था, लेकिन आजकल ईमानदारी से नौकरी करने के बावजूद भी वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, वो मान हासिल नहीं होता है। एक तरह के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चूंकि ये रह चुके हैं हेमाड पंजी, उनके दिल का दुखड़ा ये बता रहे हैं उनकी निजी हालत है वो ये बता रहे हैं। अब उस वक्त वो था, आज का तो बस आप पूछो ही नहीं। ते ही असो ते ही अधिकार संपादन अलोट पैका वेचल्या वाचून, न करिता सतत अभ्यासशीन इतर कोण करू शके। अभी वो डिपार्टमेंट की एग्जाम पास होनी पड़ती है, ऊपर वालों के खीसे गर्म करने पड़ते हैं, अमाप पैसा खर्चा होता है, उसके सिवाय अधिकार प्राप्ति नहीं होती है। हमेशा अभ्यास, चिंतन, मनन, अपार मेहनत लेनी पड़ती है, कष्ट करने पड़ते हैं, उसके सिवाय अधिकार पद नहीं मिलता है, और मिला तो भी वो टिकता नहीं है। बहुत अलर्टनेस रहता है, लगता है इसमें। जो आप स्पष्ट स्वच्छ मन वाले हो और अगर वेरी आउटस्पोकन हो तो आप इस मामले में जाना ही नहीं चाहिए। लोग बहुत गलत इस्तेमाल और गलत फायदा करवा लेते हैं, करके लेते हैं आपसे। दे यूज इट, आपका इस्तेमाल हो सकता है अगर आप बहुत ही सीधे सरल हो तो। और ये अधिकारी पद भी ऐसा नजदीक इमीडिएट नहीं मिलता। जो वो कर सकता है, वो जो एक प्रोफेशनल हरामीगिरी बोलते हैं उसको, वो चाहिए आपके पास, तो ही आपको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। आधी हो लागे बीए, मग दो नगदी कारकुन होए, महीना पगार 30 रुपए, मार्गे ऐसी ती गति। अब ये कब की बात है? ये 1910 से 1915 तक का ये बया है। गवर्नमेंट का एक क्लर्क, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जूनियर क्लर्क, उसका पगार कितना था रहता था? 30 रुपया महीना। कनिष्ठ यानी जूनियर क्लर्क, बाद में वो क्लर्क होता था। ऐसी प्रगति होते होते वो फिर वो डेप्यूटी कलेक्टर तक जाता था। डेप्यूटी कलेक्टर के आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को नहीं जाने देते। अभी होता है, अभी कलेक्टर होते हैं नॉन आईएएस कैडर वाले। ये अभी मेरे ख्याल से वो नहीं है शायद, ये अभी जो बगाटे आए थे साई संस्थान में, ये नॉन आईएएस कैडर वाले थे। तो धीरे धीरे ऐसी प्रगति करनी पड़ती है। कितना पगार था अभी उस वक्त का? जीवन मान देखिए, 30 रुपीज, 1910 to 1915, बहुत बड़ी कीमत होती थी। 1 रुपये में पूरे हफ्ते भर का, पूरे 15 दिन का सौदा आता था। घर का जो बड़ा किराया होता था, किराया 1 रुपये से 2 रुपये महीना होता था। 10 से 5 लोगों का खाना, ये मतलब इन्हें एक संसार गृहस्थी 30 रुपये में आराम से हो जाती थी, है कि नहीं? तो लेकिन अब ये नहीं रहा। पवार काका जब पहले डेली वेजेस पे लग गए थे, तब उनकी तनख्वाह थी 78 रुपीज।
स्कूल के जमाने में मैं काम करने लगा, अर्निंग वाइल लर्निंग मैंने अर्निंग करता था। 78 रुपीज में मेरा घर का किराया था 4 रुपया, और उसमें सब चल के सोने के बाद भी मैं 20 रुपए घर में बेचता था। 78 में 20 रुपए की मेरी सेविंग्स होती थी। 58 रुपीज में मैं पूरा घर चलाता था, स्कूल वगैरह के सब करके अपना। यथा काळ घाटावर जावे, जमीन मापनी काम शिकावे, मोजरी दारामध्ये राहावे, पास व्हावे परीक्षे। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक परीक्षा होती है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। वो उसके लिए प्रैक्टिकली आपको वो जो जमीन का, अभी तो क्या है, अभी दूरबीन निकली यहाँ से ऐसा रखो, एंगल लगाओ, वहां से वहां लगाओ, और वो ऊपर ड्रोन है, ड्रोन को लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर तो आपका पूरा कैलकुलेशन करके बाहर आता है। ये साइंस बड़ा प्रगत हो चुका है। उस वक्त को वो गिनना पड़ता था, जंगलों में घूमना पड़ता था, घाट पर यानी ऐसे चढ़न जो होती थी उस पे जाना पड़ता था। जमीन कैसे गिननी चाहिए इसका प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना पड़ता था, शिक्षण लेना पड़ता था। और वो जो मौजनीदार होते हैं, आप लेने वाले, उनके पास जाके ये सब समझ लेना पड़ता था, और वो करके फिर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास होनी पड़ती थी। जंगलों में ऐसे दूर दराज में भटकना पड़ता था सब जमीन का माप लेने के लिए। ऐसा करते करते परीक्षा पास हुए तो भी इमीडिएटली प्रमोशन नहीं मिलता था, इंतजार करना पड़ता था कोई टपके। पुढे जेव्हा एखादी आसामी सोये जाईल वैकुंठ धामी, तर करील आपुली रजागा रिकामी, पडेल कामी ती याच्या। अभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पास होके इसका नंबर आके ये एलिजिबल तो हो गया है, लेकिन जगह खाली नहीं है ना। जो सैंक्शन पोस्ट जितनी होती है वो तो है नहीं। फिर एखादा आदमी उसके सौभाग्य से और मरने वाले के दुर्भाग्य से मर गया तो वो खाली जगह पर इसकी पोस्टिंग हो जाती थी। पुढे जेव्हा एखादी आसामी सोये जाईल वैकुंठ धामी, जब वो वैकुंठ में पहुंचेंगे तब वो जो खाली जगह होती थी, उसकी वैकेंट पोस्ट होती थी, वो पोस्ट पर उसको की काम आता, ये इसकी अपॉइंटमेंट होती थी। आता असो हे चराट, कशास पाहिजे नुसती वटवट, ऐशा एकास साईची भेट, झाली ही गोष्ट परिसावी। चलो अभी रहने दो, ये बहुत ही मैं विषांतर हो गया है। हेमाडपा जी कह रहे कि काय को ये फालतू की बड़बड़ करनी चाहिए, जाने दो। इसी कार्य क्षेत्र का जो आदमी है जो धीरे धीरे पहुंच गया था ऊपर, उसका नाम विनायक हरिश्चंद्र, जो विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, उनका जो है, उनकी साई की मुलाकात कैसी हुई वो कहानी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान देकर सुनिएगा। बेळगाव निकट देख, ग्राम आहे वडगाव नामक, आले मोजणीदाराचे पथक, मुक्काम एक तय केला। अब पहले जो बंबई स्टेट था उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये पूरा भाग का एक बंबई स्टेट था। वो बंबई स्टेट में बेलगांव जो है, आज कर्नाटक राज्य का जो एक हिस्सा है, वो बेलगांव के बाजू में वडगांव नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां जमीन की वो मेजरमेंट लेने का एक जो स्क्वाड है, वो स्क्वाड वहां आ गया। वहां एक दिन उनको मुकाम करना पड़ा, क्योंकि जंगल में घूम के वो उनको वो मेजरमेंट लेना पड़ता था, डायमेंशन से, इसीलिए वो कभी कभार तो जंगल में सोना पड़ता था या गांव में उसको मुकाम करना पड़ता था। ऐसे एक वक्त ये वडगांव में वो आदमी को अपना मुकाम करना पड़ा जमीन जुमले के वो काम का मेजरमेंट लेने के लिए। उस गांव में एक सत्पुरुष थे। गावी होते एक सत्पुरुष, गेले तयांचे दर्शनास, चरणावरी ठेविले शीश, प्रसाद आशीष पावले। वो गांव में एक सत्पुरुष थे,
वो दर्शन के वो उनके जो, चलो भाई अभी गांव में है तो उनके दर्शन के लिए ये विनायक ठाकुर गए और उनके महापुरुष के जो दर्शन किए उन्होंने, उनके चरणों पे अपने माथा टेका और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो थे जिनका जिक्र है, उनका नाम नहीं है, वो थे अप्पा महाराज, संत अप्पा महाराज। वडगांव में, बेलगांव के नजदीक वडगांव है, वहां उनका क्षेत्र है। अप्पा महाराज थे। वो सत्पुरुष के दर्शन लेने के बाद आगे क्या घटित हुआ? त्या सत्पुरुषांचे हातात होता निश्चल दासकृत, विचार सागर नामक ग्रंथ, तो जो ते वाचित तय होते। अब वो सत्पुरुष के दर्शन को जब गए, ये जो विनायक ठाकुर जी, बड़े अधिकारी व्यक्ति रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो वो जो संत पुरुष थे, अधिकारी पुरुष, स्वामी निश्चल दास कृत, यानी उनका लिखा हुआ विचार सागर नाम का ग्रंथ वो पढ़ रहे थे। वो जो सत्पुरुष है वो ग्रंथ का पठन कर रहे थे। ये विचार सागर जो ग्रंथ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आचार्य विद्यारण्य का जो पंचदशी ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में है। आचार्य विद्यारण्य, इन्होंने पंचदशी नाम का ग्रंथ लिखा है। संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस पर आधारित ये विचार सागर ग्रंथ है। ये सन 1849 में निश्चित लाल महाराज ने उसका भाषांतर किया था हिंदी में। अभी तो बहुत भाषा में इसका भाषांतर हुआ है। अगर आपको टाइम है और ये है तो ये विचार सागर ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा एक अधिकारी ग्रंथ है ये, और अधिकारी व्यक्ति ने लिखा हुआ है। अनेक भाषा में उसके भाषांतर हुए हैं, मराठी में भी है। खैर, पुढे काही वेळ जाता येतो म्हणून निघू लागता, ते साधू जय वदले उल्लासता, तया ग्रहस्था ते परिसा। तो दर्शन हुए, वहां उनके सहवास में कुछ टाइम बैठे, फिर वो जाने लगे विनायक ठाकुर जी। अब जब जाने लगे तो जो सत्पुरुष है वो उनको क्या कहा, उन्होंने सत्पुरुष ने विनायक ठाकुर जी को क्या कहा, वो अभी आप सुनिए। बरे आता आपण यावे, या ग्रंथाचे अवलोकन करावे, तेने तुमचे मनोरथ पुरावे, असावे लक्षात। ठीक है, आशीर्वाद है, आप जा रहे जाइए, लेकिन आप अपने मार्ग पर जाइए, लेकिन ये विचार सागर जो ग्रंथ है वो हमेशा उसका अभ्यास किया करें। ये आपको बहुत फलदायी साबित होगा और इसकी वजह से आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इसका। ये संतों का आशीर्वाद है, एक तरीके से एक कान मंत्र है कि ये ग्रंथ आप पढ़े, ये ग्रंथों से आपका उद्धार होने वाला है, आपको नई दिशा मिलेगी, एकदम पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा आपका, और आपका कल्याण इसी में है। आपकी पूरी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी, आप ये ग्रंथ पढ़ना। एक संत पुरुष ने ये उनको उपदेश दिया। तुम्ही पुढे निज कार्य उद्देशे, जाता जाता उत्तर देशे, मार्गात महाभाग्यवशे महापुरुषाशी दर्शन। और आगे चल के आप ऐसे अपने काम के सिलसिले में जब उत्तर दिशा की ओर चलते रहेंगे, तो संत पुरुष ने विनायक ठाकुर जी को कहा, आगे चलकर आपके ड्यूटी का एक पार्ट, अपने कार्यक्रम का एक भाग करके उत्तर दिशा की ओर जब चलते रहेंगे तो आपके महाभाग आपका फलीभूत होगा। आपको उस मार्ग में एक महापुरुष का दर्शन होगा और ये महापुरुष के दर्शन का योग आपके जीवन में आएगा।
जब आप आगे चलकर, अभी बेलगांव में आगे चलिए, उत्तर दिशा आहे नाही आगे, पुढील मार्ग ते दावितील, मनाशी निश्चलता ते देतील, तेच मग उपदेश दिल, ठसवितील निजबोध। और वो जो है वो महापुरुष, वो सत्पुरुष है, वो आपको आगे का मार्ग दिखाएंगे, परमार्थ मार्ग। वो आपके नियत गुरु है, आपके मन को स्थैर्य प्रदान करेंगे, वो मन की चंचलता निकाल देंगे, जो इंस्टेबिलिटी और वेवरिंग माइंड है वो खत्म कर देंगे आपका। वो आपको उपदेश करेंगे और वो अपना निजबोध जो है, निज ने आपका आत्मचिंतन के माध्यम से आपको जो उपदेश की जरूरत है वो देंगे आपको। वो आगे चलकर किसने कहा है? अप्पा महाराज ने, बेलगांव के नैतिक गुड़गांव वाले। खैर उधर का कार्य खत्म हो गया। तेथील मग ते कार्य सरले, जुन्नरास तेथून बदलले, नाणे घाट चढणे आले, ओढवले ते संकट। अभी वहां से उनकी ट्रांसफर हो गई उत्तर दिशा के ओर, और वहां ये पूना डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर है। जब पूना से आप शिरडी जाते हैं ना, वो जुन्नर तालुका लगता है, वहां उनकी बदली हो गई। अब वहां जो है कोकण से सह्याद्री के माध्यम से जो नाणे घाट लगता है, नाणे घाट बोलते हैं, ये देश और कोकण, ये जो दो प्रांत है महाराष्ट्र के, ये जोड़ने वाला उस वक्त का एकमात्र वो घाट था, उसको बोलते हैं नाणे घाट। वो नाणे घाट चढ़ के जाना बड़ा दुस्तर रहता था। गाड़ी घोड़ा तो था ही नहीं उस वक्त, चलता ही नहीं थे। गाड़ी, बैलगाड़ी हो या जीप हो, कार हो तो नहीं जाती थी। तो अब कैसे जाए वहां, क्योंकि उनकी काम के सिलसिले में वहां जाना बहुत जरूरी था। जुन्नर तालुका में, वो जुन्नर में बदली हो गई थी उनको। अब जुन्नर ये तालुका प्लेस है, तो ये वहां जाके शायद मामलेदार हो गए होंगे, मामलेदार के पद पर उनका ट्रांसफर हो गया। नाणे घाट ये जो बहुत थोड़ा कठिन, चढ़ने बढ़ने के लायक जरा थोड़ा सा तकलीफ वाला है, ये बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं वो चढ़ने के लिए। अध्याय 15 की आप वो भी पंचपन देखिए, उसमें इसका वर्णन आया हुआ है। मार्ग तेथील अति बिकट, रेड्याउनी चढ़ती घाट, रेडा हाथ तदर्थ शकट, आणीला निकट आरोडाया। अब वहां वो नाणे घाट चढ़ के जुन्नर को जाने के था उस वक्त, तो वो सिर्फ वो जो बफेलो होता है ना, वो बफेलो एकमात्र साधन रहता था। उसको पीछे उसके ऊपर बैठना है, पीठ के ऊपर, और चढ़ के जाना है। यही उसका एक में वाहन था, दूसरा अल्टरनेटिव कोई नहीं था। तो वो रेडा लाया गया, रेडा बोलते हैं उसको, भैंसा। वो भैंसा लाया गया, उसके पीठ पर ठाकुर जी बैठे, प्रांताधिकारी आगे चल के हुए अभी मामलेदार थे, वो उसके ऊपर बैठे। इलाज नहीं करना पड़ेगा, इट्स ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो लाया, उसके ऊपर वो आरूढ़ हो गए, उसके ऊपर वो सवार हो गए, और वो सवारी नाणे घाट चढ़ने के लिए तैयार हो गई। होतीले पुढे मोठे अधिकारी, मिळतील घोडे गाड्या मोटारी, आज तो घ्या रेड्याची हाजिरी, वेळेस हाजिरी करेगी। आगे चल के बहुत बड़ा प्रतिष्ठा वाली, बड़े प्रेस्टिजियस ऐसी जगह मिलेगी, बड़े अधिकारी हो गए। शायद इस यहाँ भी वो मामलेदार नहीं हो गए होंगे, छोटे कुछ जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह हो गए। आगे चल के घोड़ा गाड़ी मोटर सब मिल जाएगी, लेकिन अभी तो रेड़ा पर बैठना ही, रेड़े पे बैठना, भैंसे पे बैठना ही पड़ेगा। इसकी अभी इसके लिए तो उपाय नहीं है कुछ भी। तो अभी यही वक्त निकालना है भैया, तो चलो बैठ जाओ भैंसे के पीठ पर, है ना। घाट चढ़ने अशक्य पाई, रेडिया विनस नाही सोई, ऐसी ती नाणे घाटाची नवलाई, अपूर्वाई वाहनांची। अब वो जो रेडा जो चढ़ के होता है, रेडा, इसके सिवा वो घाट चढ़ भी नहीं सकते थे आप।
अल्टरनेटिव कोई मीन्स ऑफ वेज नहीं है जाने के लिए, और नानी घाट तो बड़ा दुस्तर है चढ़ने के लिए। यही एक है भाई, वही इसकी सेवा चारा नहीं तो आ बैठो उसके ऊपर। मग तयानी केला विचार, पाला नीला रेडा केला तयार, तयावरी चरविले खोगिर, सोय कष्टे स्वार जाहले। फिर उन्होंने बोला अभी जाना है तो चलो लाओ भाई, पैसा लाओ। पैसा लाया, उसके ऊपर वो जो खोगिर उनका जो होता है, जैसे घोड़े पे बैठने के लिए जो कि एक बिछायत होती है, बांधा जाता है उसको, वो बेछत लगाया, उसके ऊपर वो बैठ गए। खोगिर बोलते हैं उसको, लगाम खोगिर, वो खोगिर चढ़ाया गया और बड़ी मुश्किल से वो वहां चढ़कर बैठ पाए वो रेडे के ऊपर। उनको वैसे सवारी करने की आदत तो थी, लेकिन वो चढ़ाव ऊपर जो चढ़ने का था वो इतना दुस्तर था, इतना महाकठिन, बड़े स्ट्रेट स्टेप रहते थे उसके। सवारी उनको आती थी, लेकिन वो जो ऊपर जो चढ़न होती है चट्टान पे जाने की, वो बहुत ही तकलीफ वाली थी, अड़चन वाली थी। नीचे ऊपर कांटो भरी थी, और अब ऊपर से रेड़ा, रेड़ा यानी भैंसा, भैंसों के ऊपर जाना है। वो भैंसा चलता है तो सिर्फ पूरी रीढ़ की हड्डी वो झटके लगाता है, ही लगाता है, आदमी हिल जाता है, वो करता है, तो वो जान चली जाती है आदमी की। आज के स्कॉर्पियो में ऊपर बैठो, बड़ा हिला देता है, वो कंफर्टेबल मिलता नहीं है, और अपनी मेरी जैसी उम्र में तो वो चलता ही नहीं है। तो इसलिए पीठ में उनको, रीढ़ की हड्डी में चमक भर गई और वो दुखने लगा, उनका बैकएक होने लगा बहुत। खैर, असो पुढे हा प्रवास सरला, जुन्नराचा कार्यक्रम उरला, मग बदलीचा हुकुम आला, मुक्काम हलला तेथून। चलो, जुन्नर का वो जो असाइनमेंट उनको दिया था वो असाइनमेंट भी खत्म हो गया, वहां से ट्रांसफर दूसरी तरफ ट्रांसफर हुई करके उसका हुक्म आ गया, वहां से निकल गए दूसरी तरफ जाने के लिए। अब दूसरी तरफ जो जाने के लिए गए, उनकी बदली हुई कल्याण में, जो मुंबई पुणे रोड पर जो कल्याण है, कल्याण में बदली हुई। वहां चांदोरकर साहब की उनके चांदोरकर साहब की मुलाकात हो गई, नाना साहब चांदोरकर, द ग्रेट साई भक्त। उनके माध्यम से उन्होंने साईनाथ भगवान की कीर्ति, साईनाथ की महिमा नाना साहब चांदोरकर ने उनको दी। और बोले यार दर्शन को जाना चाहिए, बुद्धि उदय नहीं दर्शनाची, उनके मन में आया, उनकी बुद्धि हुई कि नहीं अभी जाना चाहिए। मन में इच्छा जाग उठी। दूसरे दिवशी आली बारी, झाली चांदोरकराची तैयारी। अभी चांदोरकर जी के साथ जाने वाले थे, तो दोनों ने भी तैयारी कर दी कि चलो अपन दूसरे दिन जाएंगे। वो दोनों ने भी आपस में तय कर लिया कि चलो शिरडी जाकर आते दोनों भी। दुसरे दिवशी आली बारी, झाली चांदोरकरांची तैयारी, म्हणती चला हो बरोबरी, करू वारी शिरडीची। चलो शिरडी जाकर होकर आते हैं करके दोनों ने तय किया, और शिरडी के लिए उनको दूसरे दिन जाने के लिए उन्होंने प्लान कर दिया। घेऊ बाबांचे दर्शन, करू उभयता तयासी नमन, राहू तेथे 1-2 दिन, येऊ परतो न कल्याण। चलो शिरडी होकर आते हैं, 1-2 दिन वहां रहेंगे बाबा के सानिध्य में, सहवास में, वापस आ जाएंगे। ऐसी मंशा चांदोरकर साहब के पास उन्होंने व्यक्त की, और चांदोरकर साहब जी बोले चलो जाते हैं 1-2 दिन। लेकिन हुआ कुछ अलग। परी तेच दिनी ठाणे शहरात, दिवाणीचे आलाली तीत, मुकदमा सुनावणी निर्णित, त्या गेली सोबत तदर्थ। अब चांदोरकर जी तो निकले थे, लेकिन ठीक उसी दिन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ठाणा, कल्याण तालुका है,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय जो है सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में एक कोर्ट केस चल रही थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पेशी करनी पड़ती है, पैरवी करनी पड़ती है, कोई विटनेसेस देने पड़ते हैं, तो वो फाइनल हियरिंग के लिए वो केस लगी हुई थी वहां। तो ठाकुर जी को तो जाना पड़ा। ठाकुर जी क्या हो, वहां उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, दूसरे दिन तो वो इसके लिए जाना है, तो इसीलिए चांदोरकर जी का और उनका साथ जाना कैंसिल हुआ। चांदोरकर जी अकेले निकल गए। नाना साहेब आग्रह करीत, चला हो आहेत बाबा समर्थ, पूर्वीतील तुमचा दर्शनार्थ, की पदार्थ तो मुकदमा। अरे क्या, आप नाना साहब उनको बोले, अरे क्यों मुकदमा वगैरह करता है, तो जाने दे, साथ में चलते, बाबा समर्थ है, वो अपना तय कर लेंगे। बाबा खुद वो ऐसे कुछ अरेंजमेंट करवा देंगे, तुम्हारा दर्शन, तुम चलो। वो मुकदमे का, अरे किन पदार्थ, मैंने फिजूल का जो कोई माने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता वो मुकदमा यानी वो कोर्ट केस। आपकी दर्शन की सही मानों में इच्छा हो तो आप निकल पड़ो, जो मुकदमे का यानी वो सिविल कोर्ट का कुछ होना है वो बाबा देख लेंगे, चलो। लेकिन वो आदमी बड़ा सिंसियर था अपने कर्म का, आज तक के उसने जो प्रगति की थी वो सिंसियरिटी के बल पर की थी। परी हे कैसे तया सपटे, तारीख चुकविता भयवाटे, चुकविती लकेवी हेलपट्टे, बालपट्टी लीलेले। लेकिन भालपट्टी यानी भाल प्रदेश यानी कपा, ये जहां नसीबों का लिखा होता है। बोलते हैं कि अपना जन्म के बाद 6वें दिन षष्ठी देवी आती है और हमारा पूरा जीवन कितना उसका क्या होगा मर्यादा, वहां का हमारा जो नसीब है या लिख कर जाती है। इसको बोलते हैं कपाल पट्टी, भाल पट्टी। लेकिन ठाकुर जी को, ये विनायक ठाकुर जो है, उनको ये बात जैसे नहीं, यार नहीं, अपना काम है वो करना चाहिए, ये मन को जम नहीं रहा है, कुछ ये बात हजम नहीं हो रही है, कोर्ट की तारीख वो टाल देना उनको उचित नहीं लगा। लेकिन क्या है, प्रारब्ध लिखे हुआ, लिखे जो जाना आना किसी को चूकता नहीं है भाई, कोई नहीं टाल सकते उसको। नाना साहेब चांदोरकर, नाना साहब ने अगवा किया था कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम निकल पड़ो, लेकिन हुआ कुछ अलग। इन्होंने बोला नहीं यार, ये करते, आप जाओ, फिर मैं देखता हूं। नाना साहब चांदोरकरे कथिली पूर्वी प्रत्यंतरे, दर्शन काम दरितांतरे, विघ्नते सरे बाजूला। नाना साहब चांदोरकर ने पहले अगवा किया था, देख तेरी सही में दिल में आने की, दिल से आने की इच्छा अगर होगी ना, तो दर्शन की इच्छा व्यक्त कर, बाकी सब जो काम है, वो जो भी संकट आते हैं बाबा स्वयं वो खुद दूर करते हैं, तो तय तो कर, मुझे जाना है। अरे बात सही है। वो बापू साहब धुमाल के बारे में भी ऐसा ही हुआ ना, बहुत अच्छी रोचक कथा है, आगे आएगी। आप मैं ये मेरी आप बीती कह रहा हूं मैं तुझे, मैं सेल्फ एक्सपीरियंस लिया हूं, मैं निकलता हूं तो निकलता हूं, बाकी जो है वो बाबा संभाल लेते हैं। चल मेरे साथ। परी येई ना विश्वास जीवा, करीतील काय निज स्वभावा, म्हणती आधी घोर चुकवावा, निकाल लावावा दाव्याचा। लेकिन उनके दिल में नहीं आ रहा था हरिश्चंद्र, विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर जी को, अरे यार अपने मेरे स्वभाव धर्म में नहीं बैठता है कि ये सब काम खत्म करके बाद में चले जाए, तो पहले काम करते, इसको निपटारा देते हैं, ये मुकदमा जो भी कोर्ट केस है उसको पहले निपटा देते हैं, फिर दावे का निकाल जो आएगा वो दावे के निकाल के हिसाब से फिर निकल जाते आगे। आज हम 50 मूवियां खत्म की है, इंग्लिश वर्जन बाकी है, अगले इसमें इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं और आज यहाँ खत्म करते हैं। ये आगे आधी कथा हो गई है, आधी कथा अभी बाकी है। अब सेफ रहिएगा, एडवेंचरस मत बनिएगा, बाहर मत जाइएगा, बहुत डिजास्टर सिचुएशन है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और समूचे देश में बहुत फैल रहा है कोरोना, सो डोंट इनवाइट इट।
आखिर में बाबा तो है, ही इज अवर अल्टीमेट सेवियर, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओम साई राम। किसी को I will only conclude one thing to side notice. See, the most important thing is that Bhagya Kal has come. So I think this is to happen. So even to my grandmother and dad, the Maulana Baba had to say, there is my brother who is staying in Shirdi, and you go there. So that is the Bhagya Kal. So even to this gentleman, that Bhagya Kal has to come, you see, and he has to go to Shirdi. So he gets the right advice that go to Shirdi and things will happen. So Sai devotee should remember this particular point. Their Bhagya will come, you see, and they are already, since they are already Sai devotees, that Bhagya is already there. And now it is all the so-called benefits of life. They will get the benefits. So this is the sum and substance that each individual, he has to go through this grill and things will happen, you see. So this is what I understand from this. Yeah, you are right in stating whatever is happening with Corona. God alone knows. I mean, this is what we all say. You see, only God knows what is there in store. So He will take care. We have to leave it to Him. Yeah. shall we conclude, Nagaraj?